KD کے تمام ممبرز کا خیر مقدم۔ دوستو، آج میں صرف آپ ہی سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے توسط سے ایک عام آدمی سے بھی مخاطب ہوں۔ دیکھیے، اس وقت اومیکرون جو ہے اس کا بڑا شہرہ ہو گیا ہے، 2 دن ہوئے ہیں ابھی، لیکن یہ ایک شہرت ہو گئی۔ اومیکرون کیا ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا ہوگا، اس سے کیسے ہمیں نبرد آزما ہونا پڑے گا، کس طرح اس سے مقابلہ کریں گے، یہ ہے ایک اہم ایشو۔ جیسا کہ کرونا کے آنے کے بعد 2020 کے مارچ سے میری کچھ ویڈیوز جو ہے کرونا کے متعلق رہیں، اور جس نے دیکھا اس نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے مختلف اوقات کار میں مختلف ویڈیوز آئیں ڈیلٹا وائرس پہ، ڈیلٹا ویریئنٹ پہ۔ ایک نئی ویڈیو تھی جو آپ لوگوں نے بڑا اس کو سراہا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اس کی جو بھی معلومات اس وقت میرے میڈیکل نالج، میڈیکل اسٹڈی اور ساتھ ساتھ تجربے کے مطابق جو بھی ممکن آپ تک پہنچا سکوں، میں معلومات پہنچاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ اومیکرون جو نام ہے وہ نام ایک پیچیدہ نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویریئنٹ کا میوٹیشن بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ مور دین 40 جو ہے اس کے میوٹیشن ہو گئے ہیں اسپائکس میں، اور اس کا اتنا میوٹیشن ہونا اس کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رہے کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے تو کیا الفا، کیا بیٹا، کیا گاما، کیا ڈیلٹا، پھر اس کے بعد تھیٹا، کاپا، لمڈا، یہ سارے جو ہے بڑی تیزی سے ویریئنٹ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ویریئنٹ جو ہیں وہ آگے چلے بھی گئے اور ہمیں اس کا علم نہیں رہا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں کہ آنے والے ویریئنٹس میں ڈیلٹا کا ذرا شور ہوا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے ویریئنٹ آئے اور آگے چلے گئے۔ یاد رہے کہ جہاں ایک پیچیدہ بات ہے کہ اومیکرون کیا کرے گا اور کس طرح بیہیو کرے گا، ابھی تک نہ تو خیر میں تو میڈیکل سائنٹسٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی اس کے نئے آنے والے ویریئنٹ کے متعلق اس وقت پورے ورلڈ میں کوئی زیادہ معلومات ہیں۔ اتنی ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے یا افریقن کنٹریز سے یہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد مختلف دنیا کی مختلف کنٹریز میں پھیلتا چلا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح ہم نے کرونا کا مقابلہ کیا تھا، ہم ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری معلومات زیادہ ہے یا ہمیں علم ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ ازل سے ہم مختلف مشکلات کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور مختلف قسم کے وائرسز کا اور بیماریوں کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ انفلوئنزا ہو، چاہے وہ پلیگ ہو، چاہے وہ وائٹ پلیگ رہا ہو، یا اور کچھ بھی۔ دیکھیے، کرونا کے آنے کے بعد چائنا سے جب کرونا شروع ہوا تو اس کا نام جو ہے وہ چائنا میں دیا گیا کہ بھئی اس کا نام کووڈ ہے، کرونا ہے، کووڈ-19، اس لیے کہ یہ اس وقت پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ پورے ورلڈ میں گھومتا رہا، اور اس کے مختلف علاقے کے اعتبار سے، کنٹری کے اعتبار سے اس کے مختلف ویریئنٹ رہے، اور ان ویریئنٹ میں اس میں سب سے کامن جو تھا الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، زیٹا، ایٹا، اور پھر جو ہے اور بہت سارے ویریئنٹ جو ہے اس کے سامنے آئے۔ اومیکرون اگر یہ دیکھیں، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، ایٹا، زیٹا، یہ سارے کے سارے اگر دیکھا جائے تو یہ ہماری گریک زبان کے الفابیٹس ہیں۔ گریک زبان کے الفابیٹ میں الفا اور بیٹا فرسٹ الفابیٹ، الفا بیٹا، تو آپ جہاں ہمیں پریشانی ہونی چاہیے وہاں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اومیکرون جو ہے وہ لاسٹ لائن آف دی الفابیٹ ہے، لاسٹ لائن آف دی الفابیٹ آف گریک۔ تو ہم باوجود کم معلومات ہونے کے میں ایزیوم کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ممکن ہے انشاءاللہ کہ یہ آنے والے وقت کا آخری ویریئنٹ ہو یا آخری ویریئنٹس میں سے ایک ہو۔ دیکھیے، میوٹیشن جب وائرس میں ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کے جب چینجز آتی ہیں، تبدیلی آتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹرانسفر ہونے کا یا ٹرانسمٹ ہونے کا جو ہے اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ ہم پہلے سے بہت ساری احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میڈیسن وغیرہ، کچھ پروسیجر، کچھ احتیاطی تدابیر، لیکن اس کے وائرس کی میوٹیشن جو ہے وہ ہماری احتیاطوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اومیکرون میں جو تقریباً مور دین 40 جو ہے اس میں میوٹیشن آئے، اس طرح اس نے اپنے آپ کو ہلاکت سے زیادہ، تباہکاری سے زیادہ، ڈیڈلی ہونے سے زیادہ ابھی تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پہ اسٹڈی نہیں ہے، ابھی تو وائرس آیا، گھبرانے کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا ٹرانسمیشن ہونا، کراس مطلب یہ کہ ہمارے انفیکشن کو پھیلنا، اسپریڈ کرنا، یہ جو ہے بہت زیادہ اس میں دیکھا جائے گا۔ دیکھیے،
वेरिएंट कोई सा भी रहा हो, कोरोना रहा, उसका हमने मुकाबला किया और बहुत सारे आए, तो उसमें चंद एहतियाती तदाबीर हमें करनी होंगी, और वो चंद एहतियाती तदाबीर बड़ी कॉमन सी हैं, सिंपल सी हैं। अगर आप एक आम शख्स हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है और आपका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मरीजों से नहीं है, तो आप जो है सिंपली ये मास्क जो है, ये मास्क आप लगा सकते हैं। और मास्क लगाने के साथ साथ अगर आप ग्लासेस, आई ग्लासेस, ये आई साइड के ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चश्मा नहीं पहनते तो एक प्लेन सा चश्मा आप पहन लीजिए। तो मोस्टली जो है हमें एहतियात करने में जो है, चूँकि इसका याद रखिए कि जितने भी कोरोना के वेरिएंट हैं, जितने भी अभी तक म्यूटेड वायरस आए, उन तमाम वायरस की जो एंट्री है या एंट्रेंस है या जो इंट्रोडक्शन है हमारे जिस्म में या होस्ट में, वो हमारे मुंह के ज़रिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मुंह के ज़रिए, हमारी नाक के ज़रिए, हमारी आंखों के ज़रिए हुआ है, और किसी ज़रिए से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता। तो याद रखिए कि अगर आपके पास आई ग्लास है, आई साइड ग्लास है, तो आप पहन लीजिए, वरना थोड़ा सा उसमें तब्दीली की जा सकती है। जैसे कि मेरा ये जो आई साइड गिलास है, इसको मैंने बड़ा एक गिलास बनवा लिया था और बड़ा गिलास जो है वो मैं पहनने लगा। ये गिलास जो है इसका साइज़ बड़ा है और इसको मैंने पहनना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं लगाते कोई नज़र का चश्मा, तो इस तरह का गोगल भी जो है बचाव के लिए हो सकता है। ये जो गोगल है, ये दोस्तों बज़ाहिर तो आप ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बज़ाहिर कोई ऐसा फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो सामने वाला है, जो पेशेंट सस्पेक्ट हो सकता है या पॉजिटिव सस्पेक्ट हो सकता है, उसका स्प्रे जो है बोलने का, खांसने का, छींकने का, खांसने छींकने का तो यकीनन होगा, लेकिन उसका बोलने का, लाउडली बोलने का भी स्प्रे हमारे होता है। आँखों में कब चला गया, कौन सा स्प्रे का कोई पार्ट चला गया और वो वायरस पॉजिटिव हो गया, तो याद रखिए ये बड़ी अहम बात है कि हमें जो है इस तरह की एहतियात करनी होगी। ग्लव्स हम पहन सकते हैं, ग्लव्स बड़ी आसानी से पहनते हैं, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने पास जो है इस किस्म की एक स्क्रीन जो है वो फेस शील्ड, देखिए इस फेस शील्ड में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस फेस शील्ड को ऐसे लगा के बिल्कुल सही से फिट करके आप मरीज़ देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको बताना कि मेरे क्लिनिक में मेरे मतलब पे क्या क्या इंतजाम या तमाम है, तो अगर आप ये फेस शील्ड लगा के अपने क्लिनिक पे, अपने प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट मतलब पे, या बिल्कुल अगर आप हॉस्पिटल में, किसी पब्लिक सेक्टर में या किसी सरकारी अस्पताल में भी अगर आप मरीज़ देखना चाहें तो इस तरह की फेस शील्ड लगा सकते हैं। फेस शील्ड का फ़ायदा ये है कि वो जो स्प्रे है वो मरीज़ का या सामने वाले का वो आपके चेहरे पे नहीं होगा। दूसरी बात, मास्क कई किस्म के, ये सर्जिकल मास्क है, सिंपल डिस्पोजेबल मास्क है, ये सारा जो पीपीई है, ये पीपीई में पहना हुआ हो तो ये डिस्पोजेबल है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करना होगा। बहैसियत हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने अहल खाना से, अपनी बरादरी से ये कहता हूँ, हमें इस चीज़ से बिल्कुल दूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हमें ये एहतियातें करनी पड़ेंगी। देखिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो, मेरा मालिक करे कि ऐसा हो, मेरा परवरदिगार मेरी बात को पूरा करे कि अल्फ़ा से लेके बीटा, बीटा से लेके गामा, और ये अब ओमिक्रॉन जो है ये लास्ट लाइन ऑफ अल्फ़ाबेट है। और वैसे भी जो सस्पेक्टेड वायरसेस जो साइंटिस्ट ने बताए थे कि भाई इतने वायरस आएंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली आ गए, और ये आखिरी वायरस के आखिरी लाइन का वायरस है। अल्लाह करे ना आए, लेकिन एहतियात करनी ज़रूरी है। एहतियात से हम कोरोना या किसी भी वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम मेडिसिन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि किसी भी किस्म की बीमारी या डिजीज़ से या इन्फेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बहैसियत हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बहैसियत हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, आप लोगों को बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करेंगे, कोई सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर से मुख्तलिफ़ किस्म के टोने टोट के ये खा लें, वो खा लें, ये कर लें, भाप ले लें, और बहुत सारी चीज़ें, इससे अवॉइड करें। अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइड फिजिशियन, अकॉर्डिंग टू द एक मुस्तनद डॉक्टर, मुस्तनद प्रैक्टिशनर के आप उसके मशवरे पर अमल करेंगे और उसके कहने के मुताबिक आप ट्रीटमेंट लेंगे। याद रखिए, कोविड किसी भी टाइप का हो, यानी कोरोना किसी भी टाइप का हो या कोई भी वेरिएंट हो, उसका ज़्यादातर जो है टारगेट जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि हवा में बुनियादी तौर पे जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो तकरीबन 21%। हम ऑक्सीजन किसी भी तरीके के इलाज में, चाहे वो हिकमत हो, चाहे वो घरेलू टोटके हों, चाहे वो एलोपैथी हो, जदीद सिस्टम हो, या कोई भी तरीका इलाज हो, उसमें दवाएं अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन से अगर कोई डॉक्टर किसी भी किस्म के किसी भी मेथड का डॉक्टर या प्रैक्टिशनर या फिजिशियन मना करता है ऑक्सीजन के इस्तेमाल का, इन केस ऑफ जहाँ ज़रूरत है, तो आप समझ लेंगे वो आपका मुखलिस नहीं है। ऑक्सीजन
दरअसल हम खालिश ऑक्सीजन नहीं लेते, हम उसमें कंसंट्रेशन ऑफ दी ऑक्सीजन हमारी हवा में, हमारी फ़ज़ा में, हमारे एनवायरमेंटल में प्रोपोर्शन ऑफ दी ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन का जो मास्क होता है उसके मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो देखें दोस्तों, ये जो मास्क है ये ऑक्सीजन मास्क है, ये अडल्ट का ऑक्सीजन मास्क है। अब आप इसको देखें तो इसके दोनों तरफ जो है आर पार ये देखें, ये होल है, सुराख है, ये नाक पे इस तरह के फिट हो जाता है और मुंह को भी कवर कर लेता है। इसके अंदर ये जो सुराख है यहाँ से ऑक्सीजन आ रही होती है, लेकिन ये है कि ये अतराफ़ से ये जो दो सुराख हैं यहाँ से हमारे एनवायरनमेंट में जो फ़ज़ा, जो प्रोपोर्शन, जो हवा होती है वो भी शामिल हो रही होती है। तो इस तरह जो ऑक्सीजन है वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, खालिश ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। इसी के साथ साथ मैं दिखाता चलूँ कि ये जो नीचे है ये है दोस्तों नेबुलाइज़र का चैम्बर, और नेबुलाइज़र का सलूशन इसमें डाला जाता है और इसके बाद इसमें वेपर बनते हैं और वो वेपर बन के जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर ब्रोंकोडायलेटेशन का काम करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करते हैं। दूसरी ये है कि वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे भी काम करते हैं। बहरहाल वो एक मेडिकेटेड मेथड है और एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड शख्स जो है एडवाइस कर सकता है। इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ये मौजूद है। ऑक्सीजन का ये जो मीटर है दोस्तों, अगर आप इसे देखें तो ये जो मीटर है इसमें निशान लगे हुए हैं और ये जो स्केल है ये आप ये देखें तो ये स्केल जो है ये है 0, फिर यहाँ से 5, फिर 10, फिर 15, ये मिलीलीटर है। ये नॉर्मली 1 से 2 लीटर पे जो है ये जो निशान है 1 से 2 लीटर पे मरीज़ बेहतर है। तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे जिस्म में बहुत ही अहम रोल अदा करती है और ये जो वायरस है, खासकर कोविड का वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस, ये नमूनिया क्रिएट करता है, नमूनिया पैदा कर देता है। तो हमें ऑक्सीजन का जो है मेजरमेंट होती है। ये फिंगर टिप प्रोब है। फिंगर टिप जो है मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो में मैंने इसका इस्तेमाल बताया हुआ है। ये फिंगर टिप जो है हमारा ऑक्सीजन का प्रोब जो है ये बड़ा ईजीली आपको हर जगह अवेलेबल है, ये देख लीजिए। और अब तो हर जगह अवेलेबल है। इसके ज़रिए आप देख लें सेचुरेशन जो है मेरी 99 है इस वक्त, लेकिन साथ में सेचुरेशन के साथ साथ इसका जो है परफ्यूजन इंडेक्स भी आता है और पल्स भी आती है। पल्स नॉर्मल होनी चाहिए जो यूजुअल उस शख्स की है, और जो है जो सेचुरेशन है वो मोर देन 94 होनी चाहिए, 93। अगर ये नहीं है तो आपको अपने फिजिशियन से मिलकर, अपने डॉक्टर से मिलकर ऑक्सीजन की जो है बंदोबस्त करना होगा। ऑक्सीजन कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसी तरह एहतियात करेंगे, बहुत इजी चीज़। एहतियाती तदाबीर में एक और चीज़ आपको कोविड के बाद सामने आई। हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो बहुत अरसे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को बड़े अरसे बाद ये सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र, और हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आप इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ किस्म के हैंड सैनिटाइज़र है, ये हैंड सैनिटाइज़र। इसको बड़ा आसान तरीके से आपने इसको निकाल लेना होता है और इस्तेमाल करना होता है हाथों को। अगर आप कोई एक मरीज़ देख रहे हैं तो भी, और अगर आप कहीं से आ रहे जा रहे हैं तो भी, घर है, दफ्तर है या वहाँ इंतज़ाम या अहतमाम है सोप और वाटर का, तो सबसे बेस्ट है कि आप हाथ को धोया करें और हाथ इसको जो है सैनिटाइज़र तभी करें जब आपके पास कोई पानी का या सोप का इंतज़ाम ना हो। अगर आप ये एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के वायरस से, हर किस्म के वेरिएंट ऑफ कोविड से, कोरोना से बचेंगे। इस कोरोना के इस वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतालिक जितनी मालूमात मैं गैदर कर सका या अब तक जो मालूमात हुई हैं, जितनी भी रिसर्च या तहकीक हुई है उसके मुताबिक ये इतना डेडली नहीं है और इसके सिम्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। मैक्सिमम 2 से ढाई हफ्ते में इसकी अलामात सारी की सारी जो है सिफर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और ये डैमेजेस भी कम कर रहा है अब तक की मालूमात में। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन इसका ट्रांसमिशन जो है वो, इसका फैलने की जो रफ्तार है और फैलने की जो ये समझिए सलाहियत है इसमें, इसकी म्यूटेशन ही दरअसल फैलने के ऊपर है। तो दोस्तों जैसे जैसे इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात आएंगी तो मैं आपको इंशाअल्लाह दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।